بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس تازہ ترین عالمی خبروں اور حالات و واقعات کے ساتھ۔ ناظرین، ترکی حماس کی مدد کیوں نہ کر سکا؟ امریکہ نے صدر طیب اردوغان کو کیا دھمکی دی تھی؟ اردوغان اور عمران خان سمیت عالم اسلام کے کون کون سے جو حکمران ہیں اور جرنیل ہیں وہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت کی ہٹ لسٹ پر ہیں، اور جو دنیا کی آخری جنگ عظیم ہے وہ کب اور کہاں سے شروع ہونے جا رہی ہے، یہ ایکسکلوسیو ویڈیو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو چکی ہے ناظرین، بہت خوفناک منظر ہے۔ اسرائیل، امریکہ اور بھارت اور برطانیہ پورے خطے پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے مغربی یمن اور جنوبی لبنان پر قبضے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں، اور اس مقصد کے لیے عالم اسلام کی جو سرکردہ شخصیات ہیں ان کے قتل کی بھی ایک سازش تیار کی گئی ہے، اور کچھ رہنماؤں کو تو باضابطہ دھمکیاں تک دی جا رہی ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور پچھلے چند ماہ کے دوران انہی دھمکیوں کی وجہ سے کوئی اسلامی ملک حماس کی مدد نہیں کر سکا، اور جو بحرہ ہند، بحیرہ عرب، بحیرہ احمر اور بحیرہ روم کی جو سمندری تجارت ہے اس پر مکمل کنٹرول کے لیے میدان صاف کیا جا رہا ہے، لیکن روس اور چین بھی موقع کے انتظار میں ہیں، اور ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ ایشیا میں ایک نیا اسٹریٹجک اتحاد تشکیل پا چکا ہے، لیکن ابھی اس کا اعلان نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت کو کھل کھیلنے کی آزادی ملی ہوئی ہے۔ اگر امریکہ اور اسرائیل نے جنوبی لبنان پر حملہ کیا تو خطے میں عالمی جنگ کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ امریکی وزیر خارجہ ناظرین آخری آپشن کے طور پر مشرق وسطیٰ کے دورے پر ہیں، اور جو خطے کے اسلامی ممالک ہیں ان کے سربراہوں سے براہ راست ملاقاتیں کر کر کے انہیں دھمکی آمیز پیغامات دیے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے حماس کو اسرائیلی بمباری سے بچانے کے لیے ترکی نے کچھ نہیں کیا، جو کہ حماس کا سرپرست اعلیٰ ہے پورے خطے میں۔ ناظرین، اس پوزیشن کی وجہ سے، اس معاملے کی وجہ سے اب آئندہ کے لیے ترکی کی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی ہے، کیونکہ وہ آزمائش کی گھڑی میں اپنی پراکسی کے بالکل کام نہیں آ سکا۔ ذرائع کا ناظرین یہ بھی دعویٰ ہے کہ جو حالیہ جنگ حماس اسرائیل جاری رہی ہے اس کی وجہ سے امریکہ نے اردوغان کو دھمکی دی تھی کہ تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو شاہ فیصل، ذوالفقار علی بھٹو، صدام حسین اور کرنل قذافی کے ساتھ کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی نے جب موقع آیا، آزمائش کی گھڑی آئی، تو اس نے پھر حماس کی مدد نہیں کی اور ڈر گیا اور گھبرا گیا۔ ناظرین، دوسری طرف آج واشنگٹن پوسٹ نے بہت ایک بڑی خبر شائع کی ہے اور کہا ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ جنوبی لبنان پر بڑا حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور امریکہ اسے روک رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ جو واشنگٹن پوسٹ ہے وہ بالواسطہ طور پر امریکی اسٹیبلشمنٹ کا ہی اخبار ہے، اور جو اس میں خبر شائع ہوتی ہے وہ ایک طریقے سے دھمکی ہی ہوتی ہے، تو اس لیے واشنگٹن پوسٹ کی یہ خبر بالواسطہ طور پر ڈائریکٹ دھمکی ہے جنوبی لبنان پر حملے کی، اور جنوبی لبنان کی جو سرپرست قوتیں ہیں اور حزب اللہ کا جو سرپرست ہے ایران اور روس، ان دونوں کو بالواسطہ دھمکی ہے واشنگٹن پوسٹ کے ذریعے جو دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے اس فیصلے سے یہ جو جنگ ہے پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل جائے گی، اور امریکی حکام اور پینٹاگون جو ہیں وہ اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا صبر کر لیں اور حملہ ہم ضرور کریں گے آپ کے ساتھ مل کر، لیکن ابھی اس کے لیے حالات موزوں نہیں ہیں، کیونکہ غزہ پر بمباری کی وجہ سے اسرائیلی فضائیہ نے جو سینکڑوں پروازیں کی تھی اس کی وجہ سے ان جنگی طیاروں کی اوور ہالنگ اور پرزوں کی تبدیلی کا معاملہ ہے، اور پائلٹ بھی تھکے ہوئے ہیں۔ غزہ پر بمباری کی انتہا کر دیے جانے کی وجہ سے اسرائیلی اسلحہ خانہ میں میزائلوں کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے۔ ناظرین، یہ ساری وجوہات ہیں جو بتا کر واشنگٹن پوسٹ نے یہ لکھا ہے کہ امریکہ روک رہا ہے اسرائیل کو کہ وہ فوراً جنوبی لبنان پر حملہ نہ کرے۔ دوسری طرف حزب اللہ کے سربراہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل لبنان سرحدی جھڑپوں میں پچھلے 3 ماہ کے دوران اسرائیل کے 2000 فوجی ہلاک اور زخمی کیے جا چکے ہیں، لیکن اسرائیل جو ہے وہ اپنا جانی نقصان چھپا رہا ہے۔
नाज़रीन, ये तमाम एक्सक्लूसिव खबरें और ये जो बहुत अजीम जंग शुरू हो जाने वाली है क़यामत से पहले की, जो सबसे बड़ी जंग, वो उसकी क्या अहादीस मुबारका में क्या उसके हवाले से तफसीलात हैं, वो भी आज हम आपके साथ गोश गुजार करेंगे। और ये भी बताएंगे कि जो दौर नबवी का सरजमीन शाम थी वो कौन कौन से इलाके पर मुश्तमिल थी। लेकिन ये सारी तफसीलात बयान करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त और बाकायदगी के साथ मिलती रहें। नाज़रीन, जो दौर नबवी में जिस एरिया को मुल्क शाम या सरजमीन शाम कहते थे, उसमें आज के दौर के 5-6 मुल्क शामिल हैं। उनमें सबसे पहला नाम शाम का ही है, दूसरा लबनान है, तीसरा उर्दन है, चौथा फ़लस्तीन है, पांचवा इसराइल है और छठा सऊदी अरब का कुछ शुमाली हिस्सा है। ये सारा खिता नाज़रीन किसी ज़माने में सरजमीन शाम या सूरिया कहलाता था। आज भी इसे हम सीरिया भी कहते हैं और शाम भी कहते हैं। बनी इसराइल की रवायात में भी नाज़रीन और अहादीस मुबारका में भी यही वो खिता है जहाँ ज़माना आखिर यानी क़यामत से कबल की जंग अजीम का आगाज़ होगा, जिसे मलहमतुल कुबरा का नाम दिया जाता है। नाज़रीन, कुदरत खुदा की देखें कि इराक और अफगानिस्तान से वापसी के वक़्त अमेरिका ने ऐलान किया था कि अब वो दुनिया के किसी मुल्क पर जंग मुसल्लत नहीं करेगा, लेकिन इसका चहीता इसराइल इसे मजबूर करके सरजमीन शाम व सरजमीन यमन पर एक बड़ी जंग मुसल्लत करने की तरफ ले आया है। इस जंग की हतमी तैयारियों के लिए पेंटागन में पिछले 1.5-2 हफ्ते से मैराथन इजलास जारी हैं और उन इजलासों में किए गए फैसलों के बाद ही अमेरिकी वजीर खारजा को खित्ते में भेजा गया है और सबसे पहले वो धमकाने के लिए तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान से मिले हैं आज जाकर। और ये कहा जा रहा है कि इब्तदा में किस मुल्क पर क़यामत बर्पा की जाएगी और जंग फैलने की सूरत में किस मुल्क को निशाना बनाया जाएगा। इस हवाले से तमाम धमकियां अरब ममालक के जो सरबराह हैं और खित्ते के जो इस्लामी ममालक के सरबराह हैं उन्हें देने के लिए अमरीकी वजीर खारजा को इंतहाई खौफनाक मिशन पर, खौफनाक दौरे पर मशरिक़ वुस्ता रवाना किया गया है। नाज़रीन, जो मगरबी इंटेलिजेंस ज़राए हैं उनके हवाले से आलमी मीडिया ने दावा कर रहा है कि अमेरिका और इसराइल ने मगरबी यमन और जनूबी लबनान पर हमले का अंदर खाते बिल्कुल हतमी फैसला कर रखा है। पहले मरहले में इन्हीं 2 इलाकों पर मिसाइलों की खौफनाक बारिश होगी, दूसरे मरहले में शाम, इराक और ईरान का नंबर लगाया जाएगा। जनूबी लबनान में नाज़रीन दुनिया का जो ज़ेरे ज़मीन सुरंगों का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो ऐसे ही किसी हमले से बचने और मज़ाहमती जंग जारी रखने की गरज से पिछले 33 वर्षों की मुसलसल तामीर के जरिए तश्कील दिया गया है। दूसरी तरफ यमन ने बहीरा अहमर यानी रेड सी में आलमी तजारत को हौसी मलेशिया ने खतरे में डाल रखा है। मगरबी यमन पर हौसियों का कब्जा है, जबकि जनूबी और मशरकी यमन पर जो सऊदी और अमरीकी हिमायत याफ्ता हुकूमत है उसका कंट्रोल है। जो ज़्यादातर सहराई इलाका है, जो शहरी इलाके हैं नाज़रीन यमन के, उन पर हौसी बागियों का कब्जा है और उनकी जो ईरान उनकी एलानिया हिमायत करता है, जबकि ओमान जो है वो उनकी खुफिया हिमायत करता है। जबकि हमास और हिजबुल्लाह को हौसियों का स्ट्रेटजिक पार्टनर समझा जाता है। इसी तरह इराक और शाम में ईरान के हिमायत याफ्ता जो अस्करी ग्रुप हैं वो भी यमनी हौसियों और लबनानी हिजबुल्लाह के स्ट्रेटजिक इत्तेहादी हैं। इस पूरे अस्करी नेटवर्क की तफसील नाज़रीन इसलिए हम आपके गोश गुजार कर रहे हैं कि अगले चंद हफ्तों के दौरान ये सारे नाम आप बार बार सुनेंगे, क्योंकि एक बड़ी मलहमतुल कुबरा का आगाज़ होने जा रहा है और इस जंग के दौरान इतना खून बहेगा कि जिसके हवाले से तारीख़ की किताबों में और अहादीस मुबारक में बड़ी तफसील आई हुई है, बड़ी लर्जा खेज़ है। हमारी एक इस हवाले से स्पेशल वीडियो है नाज़रीन, वो आप जाकर देख सकते हैं कि मलहमतुल कुबरा क्या होगी और वो किस तरीके से वकूफ़ पज़ीर होगी और उसमें कितना खून बहेगा। नाज़रीन, इस पूरे अस्करी नेटवर्क को जिसे प्रॉक्सी वार का नेटवर्क कहते हैं, ईरानी प्रॉक्सीज कहते हैं, जो 5-6 मुल्कों में फैला हुआ है, अमेरिका उन सबको एक एक करके तबाह करना चाहता है। और इसके लिए अमेरिका ने एक नया अस्करी इत्तेहाद बनाया है जिसे आप नेटो प्लस भी कह सकते हैं। इसमें 12 ममालिक शामिल हैं। इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से 12 ममालिक हैं जो इस नए नेटो प्लस में शामिल हैं। अमेरिकी वजीर खारजा इसराइल और मशरिक़ वुस्ता के दौरे पर हैं और उनके इस दौरे के खात्मे के साथ ही ज़राए का ये कहना है कि जंग की ये नई आग भड़क उठेगी।
नाज़रीन, तुर्की और सऊदी अरब इस इत्तेहाद में शामिल होने पर तैयार नहीं हुए, जिसकी वजह से खित्ते के बाकी ममालिक भी अब अमेरिका को घास नहीं डाल रहे। सिर्फ बहरीन ने ये जो 12 रुकनी नया अस्करी इत्तेहाद बनाया गया है नेटो प्लस, उसमें शमूलियत इख्तियार की है। दीगर ममालिक जो इस नई मिनी वर्ल्ड वॉर में शामिल होने का मुआहदा कर चुके हैं, उनके नाम हैं ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, जापान, हॉलैंड, न्यूजीलैंड और बरतानिया। बज़ाहिर ये इत्तेहाद नाज़रीन जो बहीरा अहमर रेड सी में महफूज जहाज रानी के नाम पर तश्कील दिया गया है, लेकिन इसका असल मकसद मगरबी यमन और जनूबी लबनान पर कब्जा करना है, ताकि इसराइल बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा करने के लिए जो आखिरी जंग छेड़ना चाहता है, इसके दौरान उसे फिर न शुमाल से कोई मुज़ाहमत हो न जनूब से। नाज़रीन, ये तो दुनिया की सुपर पावर का मंसूबा है जो हमने आपके सामने रख दिया, लेकिन इस कायनात की जो सुपर पावर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मंसूबा क्या है, ये कोई नहीं जानता। और मालिक कायनात का फरमान है कि बेशक अल्लाह ही सबसे बेहतर चालबाज है, चाल चलने वाला है। नाज़रीन, आलमी इंटेलिजेंस ज़राए का ये भी दावा है कि रूस और चीन बड़ी शिद्दत से उस वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब अमेरिका और इसराइल तारीख़ इंसानी की इस आखिरी जंग की दलदल में पहला कदम रखेंगे। बड़ी नाज़रीन, बड़ी अहम नुक्ता आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ज़राए ने, जो इंटेलिजेंस ज़राए ने खबर दी है, बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है ये कि जो रूस और चीन है वो बड़ी शिद्दत से उस वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब अमेरिका और इसराइल तारीख़ इंसानी की इस आखिरी सबसे बड़ी जंग की दलदल में पहला कदम रखेंगे। रूस को यूक्रेन के साथ और चीन को ताइवान और भारत के साथ फंसाकर अमेरिका का ख्याल था कि वो पूरी दुनिया पर तने तनहा हुकूमत करता रहेगा, लेकिन कुदरत उसे घेर कर तारीख़ इंसानी की इस आखिरी जंग के मैदान की तरफ ले आई है। इंटेलिजेंस ज़राए के हवाले से आलमी मीडिया ये खबरें भी दे रहा है कि जनूबी लबनान और मगरबी यमन पर बड़ा अमरीकी व इसराइली हमला होने पर पूरे खित्ते में एक नई प्रॉक्सी वार का आगाज हो जाएगा और दहशतगर्दी की ऐसी खौफनाक लहर उठेगी कि पूरी दुनिया की आलमी जो तजारत है वो दरहम बरहम होकर रह जाएगी। इस मौका पर नाज़रीन, CIA, मोसाद और रा की तरफ से इस्लामी ममालिक की सरकर्दा शख्सियात के कत्ल के लिए दहशतगर्द हमले भी किए जाएंगे, ताकि खित्ते के ताकतवर इस्लामी ममालिक अपने दाखिली बहरानों में फंस जाएं और आलम इस्लाम इस नई बड़ी जंग में कोई मुश्तरका लाहे अमल न बना सके। बहुत बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इसी हवाले से एक हिट लिस्ट बनाई गई है, ज़राए का ऐसा कहना है, जिसमें आलमी सरबराह जो हमारे बड़े बड़े इस्लामी ममालिक हैं उनके सरबराह हैं, उनके जर्नैल शामिल हैं। इस हिट लिस्ट में जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, वो भी शामिल बताए जा रहे हैं, और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नाम भी लिया जा रहा है जो इस हिट लिस्ट में शामिल हैं। दीगर रहनुमाओं में नाज़रीन ईरान के जो रहबर हैं सैयद अली खामनाई, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी इंटरनेशनल फोर्सेस के जो सरबराह हैं जनरल राहील शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान भी इस जो रा, मोसाद और CIA का मुश्तरका ट्राइका का नेटवर्क है उसकी हिट लिस्ट पर है। अब देखना यह है कि सबसे पहले किस पर हमला किया जाता है। हमारी दुआ है नाज़रीन कि अल्लाह ताला इन साजिशों से पाकिस्तान और आलम इस्लाम को महफूज रखे और जनूबी लबनान और मगरबी यमन में गजा की तरह क़यामत बर्पा करने के जो मंसूबे बन रहे हैं उन पर अमल दरामद की नौबत आने से पहले ही खित्ते के जो मुस्लिम ममालिक हैं और दीगर आलमी ताकतें मिलकर ऐसा कोई अस्करी ब्लॉक तश्कील दे दें ताकि खित्ते में ताकत का तवाज़न बराबर हो जाए और ये जो आग और खून का खेल खेलना चाहती है ये ट्राइका, इंडिया, इसराइल और अमेरिका, उससे बचा जा सके। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए, ऐसी ही रिसर्च बेस्ड एक्सक्लूसिव वीडियोस लेकर हम इंशाल्लाह जल्द हाज़िर खिदमत होंगे। उस वक्त तक अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को इजाज़त दीजिए। आप अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।